ایک زمانے کی بات ہے، دور پہاڑوں، گھنے جنگلات اور بہتی ہوئی ندیوں کے درمیان ایک شاندار سلطنت آباد تھی۔ اس سلطنت میں صبح کی ہوا خوشبو سے بھری ہوتی، پرندوں کی آوازیں محل کی فضا میں گونجتی تھیں اور رات کو آسمان ستاروں سے جگمگا اٹھتا تھا۔ اس سلطنت پر ایک دانا، رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ صرف تخت کا مالک نہیں تھا بلکہ اپنی رعایا کے دلوں میں بھی بستا تھا۔ غریب ہوں یا امیر، سب اس کے انصاف پر فخر کرتے تھے۔ بادشاہ کی 2 بیٹیاں تھیں، شہزادی گلابی بڑی بیٹی۔ شہزادی گلابی نرم دل، صابر اور رحم کرنے والی تھی۔ وہ دوسروں کے دکھ درد کو اپنا سمجھتی، غریبوں کی مدد کرتی اور ہمیشہ عاجزی سے پیش آتی۔ اس کے چہرے پر سکون اور آنکھوں میں شفقت جھلکتی تھی۔ شہزادی دیبا چھوٹی بیٹی۔ شہزادی دیبا بے حد خوبصورت تھی، مگر اس کا دل غرور، ضد اور حسد سے بھرا ہوا تھا۔ وہ خود کو سب سے افضل سمجھتی اور دوسروں کی خوشی اسے برداشت نہ ہوتی۔ بادشاہ دونوں بیٹیوں سے یکساں محبت کرتا تھا، مگر وہ اکثر گلابی کی نرمی اور دیبا کے غرور پر غور کیا کرتا۔ ایک دن بادشاہ معمول کے مطابق دربار کے معاملات نمٹا کر محل کی طرف لوٹا۔ سورج ڈھل رہا تھا، آسمان پر سنہری روشنی پھیل رہی تھی اور محل کے دروازوں پر جلتے مشعلیں دھیرے دھیرے روشن ہو رہی تھیں۔ بادشاہ کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی اندیکھی بات اس کا انتظار کر رہی ہو۔ جیسے ہی اس نے محل کا بھاری اور نفیس نقش و نگار والا دروازہ کھولا، اس کے قدم وہیں کے وہیں رک گئے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور سانس جیسے تھم سی گئی۔ اس کے سامنے ایک ایسی حسین لڑکی کھڑی تھی جس کا چہرہ چاند کی مانند روشن تھا، جیسے اس پر چاندنی ٹھہر گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایسی پاکیزہ روشنی تھی جو سیدھی دل میں اتر جاتی تھی، اور اس کے بال ریشم کی طرح لمبے، گھنے اور سیاہ تھے، جو اس کے کندھوں پر آبشار کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے لباس سے سادگی جھلکتی تھی، مگر اس کی موجودگی شاہی وقار سے کم نہ تھی۔ بادشاہ چند لمحے تو اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹ کپ کپائے۔ تم کون ہو اور اس محل میں کیسے آئی ہو؟ اس نے بھاری آواز میں پوچھا۔ لڑکی یہ سن کر گھبرا گئی، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور پھر وہ بولی، ابا حضور، میں ہی ہوں، آپ کی بیٹی گلابی۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ کے قدم لڑکھڑا گئے، جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے سرک گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، خوشی اور خوف سب ایک ساتھ ابھر آئے۔ بادشاہ بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بیٹی تو ایسی نہیں تھی۔ تم اتنی خوبصورت کیسے ہو گئی؟ شہزادی نے نظریں جھکا لیں، آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ پھر وہ بولی، ابا حضور، وقت نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا اور تقدیر نے مجھے بدل دیا ہے، مگر میرا دل آج بھی وہی ہے، آپ کی گلابی کا دل۔ شہزادی نے یہ کہہ کر اپنے آنسو پونچھے، اور بادشاہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا، جیسے اس کے سامنے کوئی معجزہ کھڑا ہو۔ محل کی فضا میں گہری خاموشی چھا گئی، ایک ایسی خاموشی جو آنے والے رازوں اور آزمائشوں کی خبر دے رہی تھی۔ شہزادی گلابی خود بھی لا علم تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی آئینے کے سامنے گئی،
जैसे ही उसने खुद को देखा, उसकी सांस रुक गई। वाकई उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा निखर चुका था। वो खुश होकर बादशाह से बोली, अब्बा हुजूर, ये सब आपकी दुआओं और नेकियों का नतीजा है। आइए, मैं आपको वो तोहफे दिखाती हूँ जो मुझे मिले हैं। जब शहजादी और बादशाह कमरे में दाखिल होते हैं तो बादशाह की आंखें खुली की खुली रह गईं। कीमती जेवरात, हार, कंगन और ताज सब सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। शहजादी ने एक जेवर उठाया तो इसकी जगह फौरन एक और नया जेवर नमूदार हो गया। फिर इसने कुछ नारियल उठाए जो बज़ाहिर आम थे। जैसे ही इन्हें खोला गया, इनमें से सोने के सिक्के बहने लगे। जितना सोना निकाला जाता उतना ही दोबारा भर जाता। शहजादी गुलाबी ने आजी से कहा, अब्बा हुजूर, ये जेवर और सोने के सिक्के हमारे लिए नहीं बल्कि गरीब और जरूरतमंदों में बांटे जाएंगे। आपकी दुआओं और प्यार की वजह से सब मुमकिन हुआ है अब्बा हुजूर। मेरी बेटी, तुम इतनी खूबसूरत और समझदार कैसे हो गई? ये सब देखकर शहजादी दीबा के दिल में जैसे आग भड़क उठी। उसकी आंखों के सामने खजाने की चमक नाचने लगी, मगर वो चमक खुशी नहीं बल्कि हसद की स्याह परछाई बनकर उसके दिल में उतर गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी, मगर आंखों में छुपी जलन और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वो खामोश खड़ी सब कुछ देखती रही, मगर उसके दिल के अंदर सवालात और शिकवे तूफान की तरह उठ रहे थे। वो दिल ही दिल में कहने लगी, अगर गुलाबी को ये सब मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं? क्या मैं उससे कम हूँ? क्या मेरी खूबसूरती उसकी नेकी से कमतर है? उसे गुलाबी की मासूम मुस्कुराहट, उसकी आजिज़ी और सबके लिए खैर ख्वाही अब कांटों की तरह चुभने लगी। दीबा को यूं महसूस हुआ जैसे हर कोई सिर्फ गुलाबी की तारीफ कर रहा हो और उसकी मौजूदगी को नज़रअंदाज किया जा रहा हो। इसी बेचैनी में उसने एक फैसला कर लिया। वो तेज कदमों से बादशाह के पास आई। उसकी आवाज में नरमी कम और जिद ज्यादा थी, मगर चेहरे पर बनावटी संजीदगी थी। अब्बा जान, उसने कहा, मैं दूसरे मुल्क जाकर तालीम हासिल करना चाहती हूँ। मैं दुनिया देखना चाहती हूँ। मैं नया उलूम सीखना चाहती हूँ ताकि मैं भी सल्तनत के काम आ सकूं। बादशाह ने चंद लम्हे उसे गौर से देखा। उसे बेटी की आंखों में छुपी बेकरारी महसूस हुई, मगर उसने ये समझा कि शायद दीबा भी जिंदगी से कुछ सीखना चाहती है। एक बाप के दिल में बेटी के लिए शक से ज्यादा उम्मीद जाग उठी। उसने गहरी सांस ली और नरमी से सर हिलाया। अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो जाओ, मगर याद रखना, इल्म के साथ दिल की सफाई भी जरूरी होती है। दीबा ने सर झुका लिया, मगर इस झुकाव में आजिज़ी नहीं थी बल्कि एक छुपा हुआ अज़्म था। वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी। उसका इरादा नेकी सीखने का नहीं था, बल्कि वो उन राजों तक पहुंचना चाहती थी जो गुलाबी को ये सब अता कर गए थे। वो सोच रही थी कि अगर ताकत, दौलत और जादू किसी को मिल सकता है तो वो भी उसे हासिल कर सकती है, चाहे इसके लिए उसे किसी का दिल ही क्यों ना तोड़ना पड़े। यूं शहजादी दीबा एक ऐसे सफर की तरफ रवाना होने वाली थी जो इल्म का नहीं बल्कि आजमाइश, अंजाम और तकदीर के सख्त फैसलों का सफर था। एक नई राह की तरफ कदम बढ़ाते हुए शहजादी ने अपने दिल में एक नया अज़्म और राजों की तलाश की ठान ली। रास्ते में सबसे पहले उसे एक नारियल दरख्त मिला। दरख्त की आवाज कमजोर थी। दरख्त बोला, बेटी,
मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, मैं सूख रहा हूँ। मेरा लिबास खराब हो जाएगा, दूर रहो मुझसे। दीबा ने नफरत से कहा और इस नारियल के दरख्त को छोड़कर आगे चल पड़ी। शहजादी जैसे ही आगे गई तो उसे एक भूखी गाय और उसका बछड़ा मिले। गाय बोली, हमें थोड़ा सा चरा दे दो, हमें बहुत भूख लगी है। शहजादी दीबा ने गुस्से में उन्हें लात मारी और आगे चल पड़ी। शहजादी दीबा कुछ आगे बढ़ी तो उसने रास्ते के किनारे एक खूबसूरत मगर जख्मी जादुई परिंदा देखा। उसके पर सोने जैसे थे मगर एक पर टूटा हुआ था। परिंदे की आवाज कमजोर थी, जैसे दर्द से निकल रही हो। परिंदा बोला, शहजादी अगर मुमकिन हो तो मेरा जख्म साफ कर दो, मैं उड़ नहीं पा रहा। मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगी, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। ये कहकर वो बेरहमी से आगे बढ़ गई। आखिरकार शहजादी एक पुरानी झोंपड़ी में पहुंची जहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसने बूढ़ी औरत से कहा, मैं एक शहजादी हूँ और मैं कुछ दिन यहाँ रहूंगी। बेटी, अगर यहाँ रहना है तो काम भी करना होगा। मैं किसी गंदे काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। शहजादी दीबा चीख पड़ी। यूं बूढ़ी औरत ने खामोशी से सब काम खुद किए। वापसी पर शहजादी दीबा के लिए जंगल और रास्ते का हर कोना सबक बन गया। पहले जादुई परिंदे ने इसे छूकर दर्द दिया, फिर भूखी गाय और बछड़े ने अपनी ताकत दिखाई और नारियल का दरख्त भी इसके सर पर नारियल गिराकर उसे डरा गया। महल पहुंचकर दीबा ने तोहफे का डब्बा खोला तो उसमें मक्खियां और कांटे निकले। बादशाह ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। इसके बाल झड़ चुके थे और हुस्न मांद पड़ चुका था। दीबा जमीन पर गिर पड़ी, रो रो कर सच बताया। मैंने हसद किया, जुल्म किया, अब कभी ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो अब्बा। बादशाह ने उसे माफ कर दिया। शहजादी गुलाबी ने भी बहन को गले लगा लिया। उस दिन दीबा ने सीखा कि नेकी और मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है और खानदान में हकीकी खुशी सिर्फ रहम, इज्जत और आजिज़ी से आती है।